शुरू करें? कहाँ तक हो गया था? आपके क्लास के रिकॉर्डिंग आ गया मत कर दे। दवाइयों पर भारी I guess we have started with noun and gender as well. नहीं? Yeah? And we have done till this slide, I guess. है ना? इस slide तक हम लोगों ने किया हुआ है. Correct? That personification with gender. Right. So till here we have done. So we need to start. We need to start from here. है ना? यहां से हमें शुरू करना है. अब लिखा है The doctor and her patient are talking loudly. चलो one by one try करते हैं. कोशिश करो. Try to solve these questions. First correct. Three. The doctor. Woman हटा दो. Four it's. Five. बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हो. तुम लोगों को मैंने मना नहीं किया है आंसर करने से. ठीक है. 7 करेक्ट. सारे करेक्ट लग रहे हैं. ओके. 6 and 7 करेक्ट. मैं बताऊं? तुम लोगों को याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि सिंस वी लिव इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जब भी हमें किसी चीज का जेंडर ना पता हो, ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, सिंस वी लिव इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जब भी हमें किसी चीज का जेंडर ना पता हो तो हम उसके साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं. कहा है कि नहीं कहा है? यस, कहा है. हाँ देवप्रिय बोल.
Should I say now or after we are done with the exercise? Excuse me. No, so what I was saying that yeah, I remembered it. Even I also treated the first sentence in the same way. But then I thought that it's kind of a trivialization, na, that uh, if we are associating doctor only with the male category, so that's why I thought there are plenty of women doctor. So that's why I Definitely. thought if there is a statement and you can just say the doctor and her patient are talking loudly. It's 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 the age of equality, right? So yeah. I understood your point, but point is when these types of questions come in examination and the gender of a particular person is not mentioned there, okay, so you need to consider it as plural and sorry, you need to consider it as masculine gender, and you'll have to mention masculine gender words there. Like here, you are not aware of the gender of the doctor. Here we are not aware of the gender of the doctor. Then we need to put his here. And here we are not aware of the gender of the teacher. So definitely we need to put his here. जहां पर भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होगा सेंटेंस में, आपको नहीं पता कि वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, आप वो स्पेसिफाइड नहीं है सेंटेंस में, तो आपको उसको मैस्कुलिन ही कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे. Then the 10th question of yesterday counters this rule. Now we will go there and see how it is countering this rule. चल रोहन आवाज नहीं आ रही बेटा, रोहन आवाज नहीं आ रही. Ma'am, the rule that you mentioned right now for the masculine gender. So, right? So, ma'am, according to that, the third statement would be correct now. The woman doctor and her loudly. if it is written the woman doctor and her patient, बिल्कुल correct है. लेकिन अगर लिखा है the doctor, तो you need to put it his patient there. तो मैम जो स्टेटमेंट जो इससे पहले थी उसमें थर्ड वाली करेक्ट होगी ना? हाँ, थर्ड वाली करेक्ट है. हेलो मैम. मैम अगर एग्जाम में आता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं ये सेंटेंस, तो हम अगर हिज होगा तो हर होगा तो उसको हिज करना होगा, तो वो करेक्ट नहीं. अगर डॉक्टर का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है सेंटेंस में तो और वहां पे हर होगा तो आपको उसको हिज करना ही पड़ेगा. मतलब वो पार्ट एरर में आता है. जी बिल्कुल, वरना एग्जामिनर वहां पे डॉक्टर का जेंडर को स्पेसिफाई करेगा अगर वहां पे हर लिखना है तो. ठीक है. अनमोल, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन अनमोल. यस अनमोल, ये जो हर है, ये हर यहाँ पे समवन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ये हर अगर यहाँ पर समवन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो हम यहाँ पर हर नहीं लिख सकते थे. ठीक है, यहाँ पर ये जो हर है ये समवन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको हिज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो हर है ये समवन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है ना. ये मान लो कि कोई यहाँ पे हर की जगह पे मान लो किसी का नाम लिख देते हैं. मान लो कि यहाँ पर पिया है, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि someone has, one second, I'll just write down this sentence completely. Like if I say someone has stolen Pia's पर्स. अब अगर इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पर ये जो पर्स है ये है किसका? ये जो पर्स है ये किसका पर्स है? पिया का. ये समवन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा.
क्योंकि समवन तो थीफ है जिसने चोरी करी, और वो जो पिया है वो पर्स के ऊपर पोजेशन डिफाइन कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर हर आया हुआ है ये समवन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, इस वजह से हम यहाँ पे हर यूज कर रहे हैं, वरना यहाँ पर भी हिज ही लगता। ठीक है, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो वहां पर हमेशा उसको मैस्कुलिन कंसिडर करना है और मैस्कुलिन जेंडर ही आएगा। यू विल हैव टू गो विद इट। बस इक्वालिटी की बात करते हैं, अभी हुई नहीं है। हाँ जी रोहन बोलो। मैम इसी वाले कंसेप्ट में समवन में यहाँ पे भी हमें पता थोड़ी था कि वो समवन की बात तो नहीं कर रहा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन का भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है ना। तुम समझे नहीं रोहन, यहाँ पर डॉक्टर लिखा है, यहाँ पे डॉक्टर लिखा है और इस डॉक्टर का जेंडर मुझे नहीं पता, तो हम यहाँ पर हिज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे जब लिख ही दिया है हर पर्स, तब तो मुझे पता है कि वो पर्स किसी लड़की का है। हम यहाँ पे इस डॉक्टर के हिसाब से इसका जेंडर चेंज कर रहे हैं, है ना। वहां पर हम समवन के हिसाब से जेंडर चेंज नहीं कर पा रहे ना, वहां पे बस मैम हम उसमें समवन के हिसाब से तो कुछ है, समवन इज इट कैन बी एनीबॉडी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेकंड पर्सन हुज पर्सन गॉट स्टोलन, तो वहां पर इट इज मेंशनिंग हर पर्स, तो हम बता ही रहे कि हर का पोजेशन है उस पर्स पे, तो वहां तो वो डिफाइंड है कि वो गर्ल है, उसको क्यों चेंज करेंगे। वहां पे तो वो डिफाइंड है कि वो किसी गर्ल का पर्स है। बट इस सेंटेंस में ऐसा है कि हम डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें डॉक्टर का जेंडर नहीं पता, तो उसके लिए हमें मैस्कुलिन जेंडर ही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीधा लिखा होता कि हर पेशेंट आर टॉकिंग लाउडली, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे हर को हिज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो पता ही है कि किसी फीमेल डॉक्टर की पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर मेंशन्ड है और इस डॉक्टर का जेंडर हमें नहीं बताया गया है, तो हमें वहां पर उसको मैस्कुलिन ही कंसिडर करना है। ठीक है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर टीचर है और टीचर का जेंडर नहीं स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पर भी हमें हिज कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पर वुमन डॉक्टर है तो हर पेशेंट लिखा हुआ, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। If it is defined, then we do not have to change. If Change it is it. defined, then we do not have to change it. If it is not defined and it is doubtful and no gender is mentioned, so हाँ, so you will have to consider it as masculine gender. Yeah, okay. Now talk about question number 4 and 5. बेटा हर चीज में यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हर जगह मैस्कुलिन जेंडर लगा दो, जहां पे नहीं पता मैस्कुलिन जेंडर लगा दो, जहां पे नहीं समझ आ रहा मैस्कुलिन जेंडर लगा दो। सिर्फ 3 चीज है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, और वो 3 चीज है बेबी, चाइल्ड एंड इन्फेंट। और वो 3 चीज है बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट। जब कभी भी बेबी, चाइल्ड या इन्फेंट की बात करी जाएगी तो हम यहाँ पर कभी भी मैस्कुलिन जेंडर नहीं लगाएंगे। अगर हमें इनका जेंडर नहीं पता तो वी विल यूज इट एज इट, इट्स एंड इटसेल्फ। सेम इज द थिंग ना बेटा, सेम ही बात है, किड, टॉडलर, सब एक ही बात है। We are talking about the babies. ठीक है, तो जब कभी भी ये वर्ड सेंटेंसेस में यूज होंगे तो हम इनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं करेंगे unless and until we are aware। तो यहां पर हो जाएगा the baby has broken its left arm। ठीक है, the child who is playing, यहां पर भी हमें चाइल्ड का जेंडर नहीं पता, तो we'll say the child who is playing has blue bottle in its hand। लेकिन उसी के बाद वाला सेंटेंस देखो, the child who won the competition last night was a boy, तो ये he was very active, this is absolutely correct, क्योंकि हमें पता है कि was a boy, वो लड़का था।
The baby was a girl. She was very beautiful. This sentence is absolutely correct because we know that this baby was a girl. तो जहां पर भी आर अवेयर अबाउट बॉय एंड गर्ल, देन डेफिनेटली हम वहां पर जेंडर को स्पेसिफाई करेंगे. लेकिन जहां पर नहीं पता हो वहां पर विथ बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट वी विल गो विथ इट, इट्स एंड इटसेल्फ. क्लियर? Clear to everyone? Ma'am, Yeah. just to clarify, regardless of any profession, if there is no sense of gender given in the sentence, it will always be male dominated, Yeah, right? it will always be considered as masculine gender. Okay. कोई भी प्रोफेशन की बात हो रही हो, अगर वहां पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको मेल ही कंसिडर किया जाएगा. नहीं भाई, नर्स के लिए नहीं, नर्स को बेसिकली फीमेल कंसिडर किया जाता है. Now talk about these sentences. Very good. Day by day. To our. Okay. 3 door to door. स्टार्टिंग का 3 में एस नहीं होगा. ठीक है. कार आफ्टर कार्स मतलब बाद वाले के साथ एस आएगा. ठीक है. थर्ड में एस नहीं. ओके. 4 करेक्ट. दोनों में एस नहीं. अच्छा बाबा, ठीक है. फोर्थ में 1000. ओके. ठीक है. ठीक है. ठीक है. 1 मिलियन रुपी होगा. अविरल, 1 मिलियन रुपी होगा. कभी कभी ना तुम लोग मुझे ऐसे एकदम शॉक कर देते हो अपने आंसर से. कहाँ पे?
हो गया? मैं बताऊं आंसर्स? देखो, सबसे पहले जब कभी भी दो नाउन, फर्स्ट थिंग, जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो, जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो और ये दोनों नाउन सेम हो, ठीक है, और ये दोनों नाउन सेम हो, तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। दो नाउन, अरे बाप रे, डे बाय डे, कार आफ्टर कार, डोर टू डोर, थाउजेंड, डजन, थाउजेंड्स, मिलियंस, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, वेरी गुड। सो दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो और वो दोनों नाउन अगर सेम हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ही इज बिकमिंग वीक डे बाय डे, कार आफ्टर कार इज अराइविंग, डोर टू डोर सर्विस विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। अब क्या है कि तुम सबने बोला है 5 रुपीज, बोला है ना, 5 रुपीज बोलते हैं ना, तुम सबने बोला है 5 स्टार्स, 5 स्टार्स भी बोलते हैं, 5 रुपीज भी बोलते हैं, ऐसा बोलना गलत तो नहीं है? 5 स्टार्स, काउंटेबल की बात नहीं कर रही मैं, बोल रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ 5 रुपीज या मैं कह रही हूँ 5 स्टार्स, तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं, गलत तो नहीं बोल रही। अच्छा, अगर बेटा यहीं पर मैं एक और वर्ड लगा दूं होटल, तो ये गलत हो गया? तो ये गलत हो गया? यस, क्या बात है, ये गलत हो गया। क्यों भाई, कैसे गलत हुआ? सबसे पहले तो इसकी बात करें तो 5 स्टार्स होटल नहीं होता, क्या होता है? 5 स्टार होटल, स्टार्स नहीं लगाते, स्टार होता है। अब ये जो 5 स्टार होटल है, इसमें एस क्यों नहीं लगाते? इसमें एस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बेटा स्टार भी नाउन है और होटल भी नाउन है। जब दो नाउन साइमल्टेनियसली आ रहा होता है तो पहले वाला नाउन, ये वाला जो सबसे शुरुआत वाला नाउन होता है, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाता है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, ठीक है। 5 रुपीज हम बोलते हैं, लेकिन हम कभी नहीं बोलते 5 रुपीज नोट, हम हमेशा क्या बोलते हैं? 5 रुपी नोट, क्योंकि जब दो नाउन साथ में आता है तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाता है। इन अ सिमिलर मैनर, 1000 इज अ नाउन, रुपीज इज अ नाउन, दो नाउन साथ में आता है, पहले वाला एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाता है, एस हट जाएगा। डजन इज अ नाउन, ऑरेंजेस इज अ नाउन, दो नाउन साथ में आता है, पहले वाला एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, एस हट जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर, 6 में भी एस हट जाएगा। क्लियर? क्लियर है ये बात सबको? उसके बाद जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो, ठीक है, जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो और ये दोनों नाउन डिफरेंट हो, ठीक है, यहां पर हमने कंसेप्ट, यहां पर हमने बात करी सेम की, यहां पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट की। तो जब ये दोनों डिफरेंट हो तो बेटा ये प्लूरल होता है, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। तो इस वजह से ये हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये हो जाएगा मिलियंस ऑफ रुपीज,
ये हो जाएगा thousands of rupees. ठीक, लेकिन अगर इसी के बाद एडजेक्टिव लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है. अगर इसी के पहले एडजेक्टिव लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है. जैसे यहां पर देखो, 1 एडजेक्टिव है तो ये तुम्हारा 1 million of rupees है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर वहां पे 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी दे दो, वो यही होगा 10 million of rupees या 10 million rupees. ठीक है, उसके पहले जब एडजेक्टिव आ जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा. क्लियर हुआ सबको? देख लो, आराम से देख लो, फिर बताना अगर क्लियर है तो. मैम 10th में ऑफ सही है बेटा, आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 1 million rupees हो जाएगा. अगर ऑफ लगा हुआ है तो भी वो गलत नहीं है. Ma'am, हम्म. so in that case, when two nouns are joined by a preposition and both of the nouns are different and they are preceded by an adjective, like the 10th one, so the first noun becomes singular and the second noun is plural. Yeah, मतलब it depends. It varies according to the sentence कि वो countable है कि uncountable है. Okay, so the first noun will be singular. That's the rule. Yeah. Okay, and ma'am, about the second one, the second car after car. So the logic behind it being singular is like we are thinking that one car is arriving at a time, right? जैसे डोर टू डोर सर्विसेज है ना, वैसे ही कार आफ्टर कार इज अराइविंग है. ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली कार आ ही रहे. लेकिन जब कभी भी सेम टाइप के नाउन को आप प्रीपोजिशन से कनेक्ट करते हो ना, तो आप कभी भी उसको प्लूरल में मेंशन नहीं करते. दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन अ सिंगुलर वर्जन. And one thing I had a doubt in the first one. Okay, he is becoming weak day by day. That was also my answer. But if it's written like he is becoming weaker day by day, is that wrong? Like No. grammatically? No. That's right. Irrespective of it's not being followed by Yeah, a then. then it is becoming a comparative degree जहाँ पे आप previous day से आज के day का comparison कर रहे हैं. So no problem. Okay. Yeah, thank you. Okay. मैम नंबर 7 पे सेकंड नाउन जो पीपल है उसका प्लूरल नहीं होगा? नहीं बेटा, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है. ठीक है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है. Ma'am, please give us synonym for humongous. क्या synonym for humongous? Like Okay. if we would be talking in the context of the pyramids, like we would say, I went to Egypt and looked at the pyramids, and the sheer magnitude of them mesmerized me. So magnitude तो नहीं बोल सकते, लेकिन humongous या फिर build on a large scale, इसके लिए एक particular word मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं. ये लोग बता तो रहे हैं that can be used in terms of huge, large, और ये बात बिल्कुल सही है. enormous, huge, इसी terms में basically हम humongous word को use भी करते हैं. So like एक बार आप अपना sentence repeat करो तो मैं उस term में वहां पर appropriate synonym बता दूंगी. Ma'am, I went to Egypt. I went looked to Egypt. I looked at the pyramids. And the sheer dash of them mesmerized me. And it was written under sheer humongous of them mesmerized me. मतलब कि humongous size और humongous scale
of them mesmerized me. Rohan, do you mind sending this sentence on Telegram? Because it is not getting audible to me in an appropriate manner, and that's why I cannot answer. Okay, अगर ma'am, आप इसकी line message कर हाँ, मेरे को लाइन मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी वहां पे। वैसे ह्यूमंगस का मतलब इनॉर्मस, लार्ज, ह्यूज, मेमोथ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हम उसके लिए यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी वर्ड फिट आएगा मैं वहां पर आपको आंसर कर दूंगी, बिकॉज आपकी वॉइस ना कट रही है बीच बीच में, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्ट सेंटेंस। Ma'am, if I may say. मैम क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट। Okay, Indranil, you go. I'll ask later. इंद्रनील पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को बता दीजिए जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने सिर्फ ये बताया कि दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों नाउन डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो आपका पहला वाला नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये जो नाउन होता है ना, चूंकि ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा होता है, हम इसको हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जैसे कई बार ना स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि 1 मिलियन लिखा हुआ है, तो 1 की वजह से हमने यहाँ पर मिलियन कर दिया है। लेकिन आप अगर यहाँ पे 2 भी लिखा होगा ना, तो आप इसको 2 मिलियन ऑफ रुपीज ही बोलोगे, ठीक है। तो जब वहां पर एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हाँ देवप्रियो, आप पूछो। Ma'am, what I was saying that okay, I think what Rohan was asking, that he found out a sentence and he saw that the sentence is demanding that I went to the Egypt and I saw the pyramid and I was supposed delighted by its sheer dash. So here he wants to put a word that is related to bigness. So my question to you is, if he wants to put the word humongous, he can't really put there because humongous is an adjective as far as I'm concerned. That's what I was also saying ना, because then he was saying large scale, है ना, वहाँ पे So फिर he वो can put scale word enormity को because so he enormity is was a noun. that's why I asked him to write down the sentence, because when I told him that, so he said कि suppose it is large scale, तो वहाँ पे उन्होंने scale word use कर दिया, तो चलो वहाँ पे एक noun आ गया, तो humongous को as an adjective treat कर सकते हैं। So that's why I asked him to send the sentence so that I can give him the appropriate word according to the requirement. अगर noun की requirement होगी तो मैं उसके according noun भेज दूंगी, अगर adjective की requirement होगी तो मैं उसके according adjective भेज दूंगी। Yes, I was clearing because I thought that the way he said that the dash demands a noun, not an adjective. That's right. Thank you. I understood that. Okay. So these rules we have already done in subject verb agreement. Is there any student present here जिन्होंने subject verb agreement की classes नहीं करी है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है जिन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस नहीं करी है? So I guess these are the last ones only. So ये क्लासेस हर बच्चे ने यहाँ पर अटेंड कर रखी हैं, राइट? किसी को इन रूल में कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आप बेझिझक बोल सकते हैं कि हाँ मैम समझा दो। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा। ये जो आपके सेंटेंसेस हैं इसमें लिखा है इसमें ये है कि जो आपका पहला जो थर्ड सेंटेंस है, जो थर्ड रूल है इसमें, वो ये है कि पैंट्स, पजामास, ट्राउजर्स, ये जितने हैं ना, ये सारे पेयर वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। पैंट्स, पजामास, ट्राउजर्स, ये सारे पेयर वाले वर्ड्स हैं। तो ये जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ हमेशा एस लगाया जाता है, इनको हमेशा एस लगाकर ही यूज किया जाता है, और ये प्लूरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं।
ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन वर्ड्स जिसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे रिगार्ड्स है, थैंक्स है, सेविंग्स है, फायरवर्क्स है, अमेंड्स है, ब्रेसेस है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनसे अगर आप एस हटा दोगे ना, जैसे सेविंग्स है, अब सेविंग्स से तुम एस हटा दो तो सेविंग तो वर्ब बन जाएगा ना, फिर वो तो नाउन रहेगा नहीं, सेविंग वर्ब बन गया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप एस हटा दोगे तो इनका ओरिजिनल मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एस के साथ ही आते हैं और जब इसमें एस लगता है तभी इनको नाउन कंसिडर किया जाता है। तो ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे इन्हीं वर्ड्स को अगर हमने सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, अगर इन्हीं को हम सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, तो जब भी हमने इनको सिंगुलर बनाना है तो हमने इनके आगे कुछ वर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका है रूल नंबर 3 कि ये these are the certain words which exist with s and they are always considered as plural. Now similarly, like we cannot say similarly, okay, unlike question number 3, unlike sentence number 3, there exists rule number 4 as well, and rule number 4 says कि there are certain words which exist with s, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर द सर्टेन वर्ड्स व्हिच एग्जिस्ट विद एस बट इट डिफाइंस नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। फिजिक्स है नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, एथलेटिक्स नेम ऑफ अ गेम, ethics name of a subject, mumps name of a disease. So they particularly define name of a particular thing, so they are always considered as singular and we will put singular verb with them. Okay, so point is whenever they will be defining the name of a particular thing, you will use singular verb. Whenever they are defining pairing words or some words like which does not exist without s, तो उन words के साथ you will always consider plural verb. These are the difference between these two rules, है ना। इन दोनों rules में जो nouns है वो s के साथ आते हैं, लेकिन जो name specify करते हैं उनके साथ आप singular verb use करते हो, और जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं या जो वर्ड बिना एस के एग्जिस्ट ही नहीं करते उन वर्ड्स के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो। क्लियर हो गया ये बात शाइस्ता, अनमोल? यस, नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो दो रूल है, अच्छा यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं है, ब्लैंक पेज है ना। ये जो दो रूल है, अब इसमें जो वर्ड्स हैं कैवलरी, जेंट्री, क्लर्गी, इन्फैंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, चिल्ड्रन, ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं, है ना। कैवलरी का मतलब होता है राइडर्स ऑन अ हॉर्स बैक, पीजेंट्री का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कैटल क्या ग्रुप ऑफ यूजफुल एनिमल्स, चिल्ड्रन क्या प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो ये इटसेल्फ प्लूरल मीनिंग वर्ड्स है, हम इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगाते इनका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है। और ये जो प्लूरल वर्ड्स है हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे और हम इनका कभी भी एस और ईएस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ जो सेंटेंस है फिश, शीप, सीरीज, डियर, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, सो दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स जिसका सिंगुलर और प्लूरल होता ही नहीं, ठीक है। Yeah, definitely. So sixth is the rule. These are certain words जिसका singular और plural form exist नहीं करता, ठीक है। singular भी यही, plural भी यही, लेकिन fishes word exist करते हैं, sheeps word exist करते हैं। तो बेटा जब आप variety define करते हो ना
तब आप फिशेस, शीप्स लिखते हो। सिंगुलर और प्लूरल डिफाइन करने के लिए इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। क्लियर? चूंकि ये पढ़ाया जा चुका है, मैं इसके बहुत मतलब ना कि उतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और मैं सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में इसको बहुत डिटेल में मैंने बहुत टाइम लेकर इन रूल्स को समझाया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप बोल सकते हो। आई कैन अगेन राइट इट डाउन एंड एक्सप्लेन गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। है किसी को कुछ पूछना है? बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो मैम, पक्का ना? ओके ओके बेटा। ये 4 सेंटेंसेस करो, रियली रियली इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ट्राई टू सॉल्व इट। Why literatures, Debapriyo? Why literatures? I mean, literature, I mean, doesn't it signify lots of articles and all? No. I'm English literature graduate. मैं कभी नहीं बोलूंगी English literatures graduate, कभी ना। Oh, okay. Sorry. It is always literature. फर्स्ट लाइक, सेकेंड लाइक्स, भाई ये कैसे कर दिया इंद्रनील? दोनों में माई टीचर है सब्जेक्ट, और मुझे तो सिंगुलर ही नजर आ रही है, एक ही टीचर है। द 17th लिखा तो है, द 17th। क्यों भाई, क्यों? हाय रब्बा, क्यों क्यों द 16th नहीं होगा और क्यों द 17th मैं करूं? अगर बोलते हो कि मैम बता दो तो मैं बता दूंगी। अगर तुम लोग इस बात को मान जाते हो कि मैम आप ही बता दो तो मैं बता दूंगी। थ्री करेक्ट, बता दीजिए। देखो देवप्रियो ट्राई कर रहा है, मैं कैसे बताऊं? 3 में चैप्टर होगा बेटा, लिटरेचर्स नहीं होता शाइस्ता, नहीं होता बेटा। अभी वही तो मैं देवप्रियो को काउंटर कर रही थी, लिटरेचर्स नहीं होता, इट्स लिटरेचर। अच्छा बताओ देवप्रियो, बताओ व्हाई in third you have removed S? Because it's the in front of both the first and the second. So you will remove S. I'm sorry. Okay, so if I go with same scenario, then don't you think in question number 1 it should be centuries? Bolo?
I don't know what has happened to me. That was the first thought that came into my mind, but then I thought it's the game of the. Acha, shall I say something that your thought is absolutely correct? Oh, sorry. अब सोचो, अब वो लग रहा था ना कि गलत है, तो your mind was like moving here and there. Now your thought is absolutely correct. I'm just asking for a reason. Because we are specifying both. That's why, like, if we are saying the first and second, so we are specifying the first, and the second is also coming along. But if we are saying the 16th and the 17th, then we are specifying both of them, and I think both is behaving as a singular entity. That's why the singular. This is my logic. So far. Okay. I'll tell you one thing. देखो, जब कभी भी एडजेक्टिव और नाउन का रूल होता है ना, तो वो पलट जाता है. ठीक है? जब कभी भी दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, एंड देयर इज आर्टिकल विद द फर्स्ट वन, ठीक है, देयर इज आर्टिकल ओनली विद द फर्स्ट एडजेक्टिव, देन द नाउन यूज्ड इज, तो जो नाउन यहां पर यूज किया जाता है, दैट नाउन इज ऑलवेज प्लूरल. ठीक है? एंड अगेन, टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड. अच्छा, यहाँ पे मैंने द लिख दिया, कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16th 17th वो सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स लग रहे थे, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, तो मैंने वो लिख दिया. ठीक है? और अगर दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है और इन दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो, ठीक है, तो जो नाउन यूज किया जाता है, दैट नाउन इज सिंगुलर. अब यहां पर देखो तो 16th एंड 17th दो एडजेक्टिव है, एंड से कनेक्टेड है, सिर्फ पहले के पहले आर्टिकल लगा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंचुरीज. यहां पर वो कंबाइनली एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है. द 16th एंड द 17th है, तो ये सेंचुरी यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, दिस विल बी चैप्टर, तो हमने यहां से एस हटा दिया. लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ पहले के पहले आर्टिकल लगा है, तो द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है? तो एडजेक्टिव और नाउन में हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और इसका लॉजिक यही है कि ये सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज करते हैं. Clear to everyone? Ma'am, I just want to one thing quickly. Suppose when considering the first sentence, my teacher likes the literature of the 16th and the 17th centuries. So here, literature is a noun and centuries is a noun. The 16th and 17th are the adjectives. Yes. बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, ऑल दीज रैंकिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो बताते हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. But I mean, do they define the quality? Like they define the rank for sure. They define the rank for sure. So again, they're defining the quality of a person only, na, ranking and order of a particular noun only. Na? So that is the reason they're giving something, they're telling something about a noun. So that is the reason we consider it as adjectives only. Okay. चलो, ओके, आज के लिए यहीं तक रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.